हैव यू एवर थॉट कि आपने एजुकेशन लोन लिया लेकिन अगर आपका इंश्योरेंस कवरेज नहीं है तो फिर क्या होगा? Any mishappening can cause a lot of damage. It's really very important to take education loan insurance alongside education loan. In this particular video, we are going to talk about education loan insurance. बहुत ही important video है सारे के सारे education loan bearers के लिए as well as वो सारे students के लिए जो education loan लेने की सोच रहे हैं. A very crucial one. Stick till the end. Now, what is credit insurance premium for education loan? Start करते हैं credit insurance premium से. So, purpose क्या है credit insurance का? पहले वो समझते हैं. Credit insurance is designed actually to provide financial protection. किनके लिए? उन borrowers के लिए और उन families के लिए जो कि किसी भी unforeseen circumstances से affect हो सकते हैं और borrower की ability to repay education loan रुक सकती है. It typically covers events such as disability, critical illness, even in fact death of the borrower. ये इंश्योर करता है कि आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस रीपे हो जाए अंडर ऑल दीज सर्कमस्टेंसेस. इसका कॉस्ट कितना होता है? सो द क्रेडिट इंश्योरेंस प्रीमियम इज द कॉस्ट पेड बाय द बोरोवर टू सिक्योर द इंश्योरेंस कवरेज. ऑल्सो इट कैन बी कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द लोन अमाउंट or a fixed fee added to the loan repayment. Now, what are the factors that affect this particular premium? जो amount आप देने वाले उसको affect क्या करेगा? The premium amount can vary based on factors such as loan amount, loan duration कितना है, borrower की age currently कितनी है, health condition कैसी है, as well as the specific terms of the loan insurance policy जो कि education loan के साथ मिल रही है. In fact, the policy terms are also very crucial. So, borrowers should carefully review these terms and conditions at the credit insurance policy before they are purchasing it alongside the education loan. It includes the understanding that events are covered, any exclusions, and the process for filling a claim. Now, what are the considerations over here? So, borrowers should assess whether the cost of insurance premium justifies the added financial security. क्या वो justify कर भी पा रही है या नहीं? Also, they should consider alternative forms of protection, whether they meet their needs more effectively or not. Now, let's understand loan insurance fee. Loan insurance fee exactly क्या होती है? It is the extra charge by lenders to insure the loan. मतलब वो एक्स्ट्रा चार्ज लेंडर्स जो ले रहे हैं ताकि आपका लोन इंश्योर हो जाए. इसका पर्पस है टू प्रोटेक्ट द लेंडर इन केस द बोरोवर कांट रीपे ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस, जैसे मैंने आपको बताया डेथ या डिसेबिलिटी के केस में. In fact, it financially protects, so it provides security for both lender as well as borrower's family or state. How is it calculated? It can be the percentage of the loan amount or a fixed fee. Also, the factors that affect the amount depend on loan type, amount, borrower's creditworthiness, and terms that are negotiated. Why is it important? Because it's essential for borrowers to understand to assess the total cost of borrowing and the insurance coverage that is provided. अब थोड़े डिटेल में समझते हैं कि इस एजुकेशन लोन इंश्योरेंस में कवर क्या क्या होता है. सबसे पहले, as I already told you, death. If the borrower dies before repaying the loan tenure से पहले borrower की death हो जाती है, तो the insurance coverage pays off the remaining loan balance. In fact, disability is also covered over here. So, if the borrower becomes disabled and is unable to work, तो वर्क नहीं कर पा रहा है या अर्न नहीं कर पा रहा है इनकम को, तो इंश्योरेंस में कवर द लोन पेमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड और पे ऑफ द लोन बैलेंस. हो सकता है पूरा का पूरा या कुछ अमाउंट तक. ऑल्सो क्रिटिकल इलनेस भी इसका पार्ट होती है क्योंकि सम पॉलिसीज कवर क्रिटिकल इलनेसेस लाइक कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, which may prevent the borrower from repayment of the loan amount. कुछ और important things है जहां पर एक education loan insurance policy बहुत helpful हो सकती है, like involuntary unemployment. तो अगर कभी कोई borrower involuntarily loses their job, then that point of time this loan policy will ensure that loan payments are made during the unemployment period. Also, temporary disability. So the coverage may also extend to a temporary disability that impact the borrower's ability to work, और जब तक ये टेम्पररी डिसेबिलिटी खत्म नहीं हो जाती. कुछ और इवेंट्स हो सकते हैं लाइक अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस लाइक नेचुरल डिजास्टर्स, एक्सीडेंट्स और कुछ और सर्कमस्टेंसेस जिस टाइम पर ये एजुकेशन लोन इंश्योरेंस पॉलिसीज आर रियली वेरी. ये पेमेंट प्रोसेस होता कैसे है? मतलब आपको क्लेम लेना है तो एक्चुअली करना कैसे पड़ेगा? सबसे पहले जब इंश्योर्ड इवेंट होता है, इंश्योर्ड का कोई भी इवेंट होता है सच एज बोरोवर की डेथ हुई, डिसेबिलिटी हुई या क्रिटिकल इलनेस हुई, देन बोरोवर और उसकी फैमिली को लेंडर को इन्फॉर्म करना पड़ता है
और लैंडर इन्फॉर्म करता है इंश्योरेंस प्रोवाइडर को अबाउट द क्लेम, या फिर दोनों में से कोई भी इन्फॉर्म कर सकता है इंश्योरेंस प्रोवाइडर को। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन की बारी आती है। तो जो क्लेमेंट है इट प्रोवाइड्स द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट द क्लेम, which may include the medical records, death certificates, proof of disability, depending upon the nature of the claim. Claim evaluation by the insurance provider is the next step. तो इंश्योरेंस प्रोवाइडर रिव्यू करेगा सबमिटेड डॉक्यूमेंटेशन को और एसेस करेगा वैलिडिटी ऑफ द क्लेम को, देखेगा कि सारे डॉक्यूमेंट सही है और ये क्लेम सही है और वो पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस को मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बेसिस पे या तो अप्रूवल देगा या डिनायल करेगा। सो बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन द इंश्योरेंस प्रोवाइडर either approves it or denies the claim. If approved, then insurer provides the payment process पूरी तरीके से और पेमेंट हो जाएगी। In case अगर ये डिनाई होता है, the reasons for denial are actually communicated to the claimant in that particular case. In case ये claim अप्रूव होता है, तो इंश्योरेंस प्रोवाइड डिस्पर्स करता है पेमेंट डायरेक्टली टू द लेंडर टू सेटल द आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस, और ये प्रोवाइड करता है पेमेंट एज पर द पॉलिसी टर्म्स सच एज मंथली डिसेबिलिटी पेमेंट्स, जो भी उस पॉइंट ऑफ टाइम में पॉलिसी में लिखा हुआ है। नाउ they have to adhere to the policy limits as well as deductibles. So the amount of payment actually depends upon the coverage limits specified in the policy and any deductibles or co-payments that actually apply. Now इसके बाद continued loan servicing भी होगी. So even after the loan insurance payment, the borrower or the family may still need to work with the lender to manage any remaining loan obligations such as updating loan status or finalizing the paperwork that is done after that. एजुकेशन लोन इंश्योरेंस के बारे में आपने जरूर समझ लिया होगा, बट इसके बेनिफिट्स हैं क्या, एक बार वन बाय वन वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले ये आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, हमने अभी समझा। तो एजुकेशन लोन इंश्योरेंस आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, किस किस को, बोरोवर को भी, उसकी फैमिली को भी, क्योंकि इंश्योर करता है कि लोन ऑब्लिगेशंस पूरी तरीके से मेट हो, कोई भी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंस है, चाहे वो डेथ है, डिसेबिलिटी है, क्रिटिकल इलनेस है, या हमने जो 2-3 और बातें करी उन पर्टिकुलर केसेस में भी। इनफैक्ट लोन रिपेमेंट का असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर बोरोवर फेस कर रहा है डिफिकल्टीज को रीपेमेंट के टाइम पे और कवर कर रहा है इवेंट्स को सच एज अनएम्प्लॉयमेंट या डिसेबिलिटी, द इंश्योरेंस कवरेज यहां पर हेल्प कर रही है पेइंग ऑफ द लोन बैलेंस और कवरिंग लोन पेमेंट्स फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। तो मतलब असिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। बहुत बड़ा पीस ऑफ माइंड रहेगा, क्योंकि आपके सबसे स्ट्रेसफुल पीरियड में या उस पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हेन यू रियली नीड मनी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री आपको मदद कर रही है बाय प्रोवाइडिंग यू दी क्लेम। बहुत बार लोन को कोसाइनर्स साइन करते हैं एंड यूजुअली क्या होता है, कोसाइनर्स के ऊपर पूरा बर्डन आ जाता है इन केस ऑफ एनी मिसहैपनिंग, बट इंश्योरेंस अगर है तो कोसाइनर्स के ऊपर कोई बर्डन नहीं आएगा। सो नो बर्डन ऑन द कोसाइनर्स। Also, it provides flexibility in loan terms. So some education loan insurance policies offer flexibility in loan terms such as deferment or forbearance options to accommodate unexpected life events, providing additional financial relief to borrowers during challenging times. In fact, सबसे अच्छी बात यह है कि आपके क्रेडिट स्कोर को भी प्रोटेक्ट करता है। अगर आप डिफॉल्ट करते हैं एजुकेशन लोन को, ये इंपैक्ट कर सकता है बोरोवर का क्रेडिट स्कोर और फ्यूचर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज भी। एजुकेशन लोन इंश्योरेंस हेल्प करता है इसको प्रिवेंट करने में और इंश्योर करने में कि लोन रिपेमेंट पूरी तरीके से। We talked about the education loan insurance premium in this particular video. In next episode, we are going to talk about something related to education और एजुकेशन लोन। ये चैनल आपको बहुत फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है, सो आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? अभी के भी सब्सक्राइब करिए प्रोपेल्ड को, लाइक शेयर भी जरूर करिएगा दिस पर्टिकुलर वीडियो, बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल भूलिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।